नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शाहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का केटीआर पर आरोप, तेलंगाना में विकास परियोजनाओं को अवरुद्ध करने की साजिश। राहुल गांधी का बयान, जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी, तेलंगाना में 70% काम पूरा। राहुल गांधी का अडानी ग्रुप पर करा हमला, तत्काल गिरफ्तारी और जेपीसी की मांग। बरेली में कोहरे के कारण 12 गाड़ियां टकराई, 25 लोग घायल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह संभालेंगे टीम की कमान। अब खबरें विस्तार से। वेमुलावाड़ा में प्रजा पालाना विजयोत्सव समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केटीआर ने तेलंगाना में विकास परियोजनाओं को अवरुद्ध करने की साजिश रची है और उनकी ऐसी हरकतें उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए हमले के लिए बीआरएस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अधिकारियों पर हमले में भारे के गुंडों का इस्तेमाल हुआ था। కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టిండు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 7 లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో అప్పుల ఊబిలో ముంచిండు। 7 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తెచ్చిన చంద్రశేఖర్ రావు 10 సంవత్సరాలలో 20 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన చంద్రశేఖర్ రావు 100 కోట్లతోని రాజన్న దేవాలయాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయిందా? ప్యాకేజ్ నెంబర్ 9 సిరిసిల్లలో ఎందుకు పడావు పడ్డది? కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు పూర్తి కాలేదో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। 10 ఏళ్లలో 1 లక్ష రూపాయలని 4 విడతలని మిత్తి కడతా అని తడిసి మోపెడై రైతులు దేశంలోనే ఆత్మహత్యలలో 2వ స్థానం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన సంగతి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మర్చిపోయినట్టున్నాడు। మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో ఉంటే ఈ 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం రైతుల ఆత్మహత్యలలో 2వ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది। నువ్వు రైతు రుణమాఫీ చేస్తా అని మొదటి 5 సంవత్సరాలు 1 లక్ష రూపాయలు చేస్తా అని 4 విడతలని 5 ఏళ్ళని నువ్వు ఆ లక్ష చేసే లోపల ఇంకొక 1 లక్ష మిత్తి అయింది। అసలు మిత్తి తడిసి మోపెడైంది। రెండవసారి మళ్ళీ 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తాని 5 ఏళ్ళైనా 1 లక్ష రూపాయలు పూర్తి చేయలే। ఆ 5 ఏళ్ళలో ఆయన ఇచ్చింది 11,000 కోట్ల రూపాయలు। ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారిని అసెంబ్లీకి రమ్మనుండ్రి, లెక్కలన్నీ తీసి నేను చదివి। मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने बुधवार को कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेष धनराशि आवंटित कर रहे हैं और मुलुगु जिले को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लखनावरम झील में स्थित तीसरे द्वीप को टीएसटीडीसी और फ्रिक और एडवेंचर कंपनी की साझेदारी में 7 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। जुपल्ली और दानाश्री अनुसुईया सीता अक्का ने इस द्वीप का उद्घाटन किया। एक प्रेस वार्ता में राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेलंगाना पर्यटन विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। స్థాయిలో అంతకంటే మించి చేసేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం। త్వరలోనే దాని ల్యాండ్ భూసేకరణ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు। ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆ దిశ కూడా అడుగులు పడతా ఉన్నాయి। కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక అద్భుతమైనటువంటి పర్యాటక కేంద్రంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంది। ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ వనరులు ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను రాష్ట్ర ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేసేది కూడా ప్రపంచంలో లేని మన దగ్గర ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఉన్నాయని మన దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ మన దగ్గర ఉన్నాయి ప్రపంచంలో లేవు। అంటే గొప్ప కట్టడాలు కావచ్చు, చారిత్రక కట్టడాలు కావచ్చు, గొప్ప దేవాలయాలు కావచ్చు, అట్లాగే పురాతనటువంటి అంటే యాన్షియంట్ నిర్మాణాలు, గొప్ప గొప్ప నిర్మాణాలు, ఆర్కియాలజికల్ కట్టడాలు కావచ్చు, చాలా ఉన్నాయి। ములుగు జిల్లా వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1 పర్యాటక ప్రాంతంగా వర్ధిల్లుతా ఉంది। ఇటు లక్నవరం కానీ అటు రామప్ప మరి టెంపుల్ వరల్డ్ హెరిటేజ్గా ఉండడం కానీ రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఫారెస్ట్ ఉండేటువంటి ఏరియా కూడా మన ములుగు। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना जरूरी है और तेलंगाना सरकार ने इसका 70% काम मुकम्मल कर लिया है। गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार ने तेलंगाना में जाति आधारित
जनगणना का 70% से अधिक काम पूरा कर लिया है और बहुत जल्द सरकार के पास राज्य का विस्तृत डेटा होगा, जिसका उपयोग हम नीतियां बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जातीय जनगणना समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है और यह अगले कुछ दशकों की योजना बनाने में सहायक होंगी। गांधी ने देश भर में एक व्यापक जातीय जनगणना का आह्वान किया और कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने इसका नेतृत्व किया है और हम राष्ट्रीय स्तर पर भी एक व्यापक जनगणना करेंगे। अमेरिका में गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ SEC द्वारा दायर अभियोग में अडानी समूह की भ्रष्टाचार जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति JPC बनाने की कांग्रेस की मांग को और मजबूत किया गया है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में दायर अभियोग भारत सरकार के भ्रष्टाचार और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन की जांच की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं अडानी और अडानी के साथियों को लेकर, और इसके बारे में अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर लगे ताज़ा आरोपों पर अपनी राय रखी। उन्होंने अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और अडानी समूह की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC गठित करने की कांग्रेस पार्टी की मांग दोहराई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ दायर अभियोग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह स्पष्ट हो गया है कि अडानी ने अमेरिकी और भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि अडानी अभी भी भारत में खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि अतीत में कई मुख्यमंत्री और आम लोगों को मामूली मामले में गिरफ्तार किया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले समेत कई अन्य वित्तीय अनियमितताएं की हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था। दरअसल भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक है तो सेफ हैं। तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज LOP इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। JPC की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है,
मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी, यही पूछना चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है? इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते, अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो सामने बात आ रही है। नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को आउटसोर्स करने के फैसले पर कड़ी आलोचना की है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि बीजेपी अपनी पूरी सरकार को आउटसोर्सिंग कर दे ताकि आयोग का पूरा हिसाब किताब एक ही जगह हो जाए। अखिलेश यादव ने इस फैसले को संवैधानिक आरक्षण के अधिकार के खिलाफ बताते हुए सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार सुबह कोहरे के कारण नैनीताल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में 25 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा जादवपुर क्रॉसिंग के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ जब कोहरे के कारण SRMS की एम्बुलेंस DCM से टकरा गई और इसके बाद अन्य गाड़ियां भी टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाम को खुलवाया और यातायात को बहाल किया।
गाड़ी आ गई क्या? अरे देवी लौट आना। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के और बढ़ते खतरे के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इटली, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि सुरक्षा के कारण यह कदम उठाया गया है क्योंकि कीव में रूस द्वारा गंभीर हमला का खतरा है। हाँ, लेकिन यूक्रेन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि वह पिछले 1000 दिनों से लगातार हमले का सामना कर रहे हैं। ऐसे में फर्जी खबरों के आधार पर दूतावास को बंद करना अनुचित है। रोहित शर्मा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का स्थानीय कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान। हाँ, लेकिन रोहित शर्मा पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे बुमराह टीम के कप्तान संभालेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत ने कहा है कि उनकी नेतृत्व शैली रोहित और विराट से अलग होगी और उन्होंने इसे एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी माना है। बुमराह ने तेज गेंदबाज को कप्तान बनाने के पक्ष में पैट कमिंस का उदाहरण देते हुए कहा है कि तेज गेंदबाजों में अधिक बुद्धिमत्ता होती है और कप्तान कपिल देव जैसे महान कप्तान भी इसका भूमिका निभा चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का केटीआर पर आरोप, तेलंगाना में विकास परियोजनाओं को अवरुद्ध करने की साजिश। राहुल गांधी का बयान, जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी, तेलंगाना में 70% काम पूरा। राहुल गांधी का अडानी ग्रुप पर करा हमला, तत्काल गिरफ्तारी और जेपीसी की मांग। बरेली में कोहरे के कारण 12 गाड़ियां टकराई, 25 लोग घायल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह संभालेंगे टीम की कमान। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।